Hello friends, I am Priya. Welcome and welcome back to my YouTube channel. How are you guys? I hope you all are doing great. So guys, if you are new in my channel, please subscribe to Literature Notes with Priya so you can get early notifications of my videos. Firstly, I will give some short intro of my channel. This channel is about English literature notes and paper analysis. And this channel is especially helpful for the UG and the PG students. So guys, without any further delay, let's start. Friends, if you know that I started the dramatic monologue series, firstly I have discussed The Porphyria's Lover by Robert Browning, and so today is the second poem of the series. So I am discussing about the most important poem, Ulysses. This poem is written by Alfred Lord Tennyson, the representative poet of Victorian age. And this poem is as a dramatic monologue. You know guys. सो गाइज स्टार्ट करते हैं यूलिसिस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, और इसके अलावा मैं बता सकती हूँ आपको कि ये और भी जो काफ़ी क्वेश्चन इस जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ इसके थ्रू आपके बन सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोइट। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वन ऑफ द major poets of Victorian age, was born on August 6, 1809. He was educated at Trinity College, Cambridge, and here he met Arthur Hallam. So guys, please note his friend's name, who became his most intimate friend. In 1850, he was made poet laureate by Queen Victoria. As a poet, he was the expositor of his age. About the poem. This is one of the famous poems of Tennyson. There is a description of a historical figure, that is Ulysses. He is the hero of Homer's great epic Odyssey. The narration in the poem is through the mouth of Ulysses himself. So guys, the line is saying that the speaker is Ulysses. According to the story, of the epic, the hero had returned home at Ithaca. So please note down the Ithaca, his hometown, from his exploits at 20 years, and note down the 20 years. But after returning at home, he feels tiresome due to his idleness and inactivity. He has a great yearning to set out once again in search of adventures, and he wants to gain new experiences. सो गाइज आप देख सकते हैं कि जो यूलिसिस है वह बिल्कुल भी उसको आइडलनेस बिल्कुल भी वो उसको लाइक नहीं करता है, और वो वापस अपने जो मतलब 20 ईयर्स अपने होम टाउन में 20 ईयर्स बाद वो अपने होम टाउन में आया है, उसके बावजूद भी उसको लग रहा है कि वो वापस वहीं चल जाए जहाँ से वो आया है अपनी एक्टिव लाइफ में। और फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको बता रही हूँ नोट डाउन करने के लिए, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं। तो आप उसको या तो अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिएगा आप, या फिर एक साइड में लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके सिलेबस में ये पोइम मेंशन है तो ये जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ यहाँ पर आ सकते हैं। समरी ऑफ द पोइम। Ulysses considers it an unworthy life for an adventurous king to run the routine administration and live among the people who do not know about his wide experiences and adventures. He is tired of the idle and unadventurous life and ardently longs to put out to sea again. So guys, आप समझ रहे हैं कि मतलब उसको जो अपना जो किंगडम था वो भी उसको चलाना पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ ऐसे लोग थे जो उसके उसकी जो मतलब उसके बारे में जानते ही नहीं थे, और वो एक जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो एक धड़ल्ले से एक जो काम चलता है वो उसको नहीं करना चाहता था। उसको एक्टिव लाइफ, न्यू एक्सपीरियंसेस पसंद थे अपनी लाइफ में, और वो वापस मतलब वो उसको वापस अपनी जो जहाँ से समुद्र यात्रा से वो आया था उसको वापस वहीं जाना था। ही हैज़ earned a great name among the adventurers and has been honored by all wherever he went, all cities, countries, councils, and the governments. Ulysses wants to entrust his son Telemachus with the responsibilities running and the administration. So guys, please note down the name Telemachus, his son. यहाँ पे जो यूलिसिस है वो चाहता है कि वो सारी जिम्मेदारी है उसकी किंगडम की वो टेलीमेकस को दे दे, क्योंकि वही मतलब 20 ईयर से टेलीमेकस ही
वह काम संभाल रहा था उसके किंगडम का और वो काफ़ी अच्छा कर रहा था और यूलिसिस को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। सो वो चाहता था कि टेलीमेकस ही वह संभाले। मतलब कि ऐसा होता है कि अगर यूलिसिस वहाँ आ जाता है तो यूलिसिस ही संभालेगा, पर यूलिसिस चाहता था कि टेलीमेकस संभाले और वो वहाँ से चला जाए। He is in the old age and some noble deed can be done before death in his age. So guys वो ओल्ड एज में जा चुका है, तब भी गाइज उसको लगता है कि वह अभी भी कुछ नोबल डीड्स कर सकता है। And he has the some will power, same spirit to do heroic deeds, to strive to find new grounds and never to surrender. एंड गाइज ये जो पोइम है यूलिसिस, इसकी मोस्ट फेमस लाइन्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें मैंने नोट नहीं करी है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। सो गाइज अगर आप ये लाइन लिखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करी है, आप ऐड कर सकते हैं। ये गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। सो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ समरी फिनिश होती है। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 2 सेक्शंस ऑफ द पोइम। दिस पोइम इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। गाइस कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये, सबको लगता है कि ओनली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बट गाइस ओनली ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, इसके अलावा भी इसमें कुछ और ऐड है, तो हम देखते हैं। दिस पोइम इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। इट इज़ पार्टली ए सोलिलोक्यू एंड पार्टली ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो गाइस यहाँ पर सोलिलोक्यू भी इसमें ऐड है और मतलब पता नहीं है कई लोगों को कि यहाँ पर इसमें सोलिलोक्यू भी है। इन लाइन्स 1 to 43 द प्रोटेगोनिस्ट यूलिसिस स्पीक्स टू हिमसेल्फ। जहाँ पे गाइस वो खुद से बात करेगा तो वहाँ पे सोलिलोक्यू होगा, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में खुद से बात नहीं करना होता है। अगर आपने मेरी ड्रामेटिक मोनोलॉग वाली वीडियोस नहीं देखी है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है एक्चुअली में, तो आप पहले जाकर उस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो सकता है। और हम यहाँ पर जैसे हम जो भी पोइम है, अगर हमारा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ड्रामेटिक मोनोलॉग का, क्योंकि पता है सबको पता है ड्रामेटिक मोनोलॉग वाली पोइम है, तो सबसे पहले हमें एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग डालना है। तो उसमें जो मैंने बताया है आपको, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग वाले क्वेश्चंस में वो जो एक पैरा है वो आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समरी वगैरह देनी है। सो स्टार्ट। हेयर इन दीज लाइन्स द पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ ए सोलिलोक्यू एंड देन ही एड्रेसेस हिज मैरिनर्स फ्रॉम लाइन 44 टू ऑनवर्ड्स। लाइक समथिंग यहाँ पर है 70 करीब लाइन से, तो यहाँ से 44 to 70 करीब यहाँ पर जो हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग चलेगा, क्योंकि वो मैरिनर्स को एड्रेस करता है। इसमें मैरिनर्स कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, और वो एड्रेस करता है, यानी वो बोलता है, उनको कमांड करता है। एंड द पोइम इज कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। यूलिसिस इज द स्पीकर ऑफ द पोइम। ओके, द मैसेज ऑफ द पोइम। द पोइम हैज़ ए मैसेज फॉर ऑल टाइम। According to Ulysses, activity means life and inactivity means death. So guys, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। इट इज़ पर्सनल। अगर आप एज ए स्टूडेंट है, लर्नर है, आप वर्किंग है, कुछ भी कर रहे हैं आप, सो गाइज ये जो मैसेज है ये सभी एज ग्रुप वाले लोगों के लिए है, सभी के लिए। अगर हम ऐसे इसको एज ए पोइम के थ्रू मैसेज ना समझें, हम समझे कि यूलिसिस के लिए नहीं है, मतलब कि हम सब के लिए ये मैसेज हमें टेनिसन ने दिया है कि हमें हमारी लाइफ में एक्टिव रहना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। जब तक हम कर सकते हैं हम तब तक काम करें। और सो गाइस इसको पढ़ते हैं, हम पढ़ के आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। ए मैन हु लीड्स एन एक्टिव लाइफ फुल ऑफ एक्शन मोशन may be considered becoming and worthy life. Ulysses wants a life of activity. There is no sense in idling in the way of life. The sword, guys ये मेरी मोस्ट फेवरेट लाइन है। द स्वॉर्ड गेट रस्टी ऑफ इट इज़ नॉट यूज्ड। सो गाइस यहाँ पे जो तलवार है उसमें भी जंग लग जाता है अगर हम उसको यूज़ नहीं करते। सो इसी के थ्रू हम समझते हैं कि अगर हमारे माइंड को अगर हम कुछ कर सकते हैं, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारी जो बॉडी है, हमारे जो माइंड है, उसमें भी जंग लग सकती है, वो भी ख़राब हो सकता है। तो हम जितना कर सकते हैं, हम जितना अपने माइंड को यूज़ ले सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। A man should try to enrich his knowledge and experience and should be engaged in the task till the end of the life. So guys हमें जो यूलिसिस है उसके थ्रू एक मैसेज मिलता है कि हमें जब तक हमारी लाइफ का एंड नहीं हो जाए ना, तब तक हमें हमारे जो टास्क है जीवन के उसमें हमें बिजी रहना चाहिए। और हम कई बार जैसे अभी हम किसी को देखते हैं तो वो मतलब जो एज ग्रुप ओल्ड एज हो जाता है तो वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करें, जबकि अगर वो अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे तो उन्हें और मोटिवेशन मिलता रहेगा और वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सो गाइज हमें यही
जो मैसेज मिलता है इसमें कि हमें जब तक हमारी लाइफ चल रही है तब तक हमें हमारे जो एक्टिव टास्क है उनको पूरा करना चाहिए, हमें जो सीखते सीखते रहना चाहिए। सो गाइज़ यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है ये फिनिश होता है। और ये गाइज़ एज ए हम इसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन के रूप में भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को। और अगर हमारा क्वेश्चन आता है एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग तो वहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। बट गाइज़ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग आप ऐड कर दीजिएगा, बिकॉज इसमें नहीं है। और मैंने उसकी एक सेपरेट वीडियोस बना रखी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग पता नहीं है तो आप उसको अच्छे से देखिए, इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। और एज अगर इसमें मैसेज ऑफ द पोइम आ जाता है तो मैंने मैसेज आपको बता ही रखा है। बट गाइज अगर हमारा पर्टिकुलर मैसेज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हमको थोड़ा बड़ा करना है मैसेज को, तो हम जो समरी का थोड़ा पार्ट है वो हम मैसेज में ऐड कर देंगे। आप कुछ कुछ लाइन्स इधर से उधर कर सकते हैं क्योंकि ये समरी है पूरी, तो हम इसमें अच्छे से कर सकते हैं। पर गाइज कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको ये जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं ये आपको लिखनी ही है। और अगर आपका 10, 5 नंबर का क्वेश्चन या 20 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए इनफ मैटर है ये। उसके अलावा गाइज हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे द मैसेज ऑफ द पोएम है, इसको आप जो मैंने इसमें कंक्लूजन नहीं दिया है बिकॉज क्योंकि मैसेज में ही कंक्लूजन इंक्लूड है। तो जो मैसेज है आप उसको आधा कर सकते हो और उसमें कंक्लूजन ऐड करके कुछ लाइंस आप अपनी तरफ से भी इसमें से इधर उधर करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे गाइज ये ख़त्म होता है मेरी वीडियो यूलिसिस की। सो फ्रेंड्स, इफ़ माई वीडियो इज़ हेल्पफुल so please do like, share and subscribe. Okay, bye bye, take care.